with nucleic acid sequence database. The nucleic acid sequence database will contain the information regarding the nucleotide sequences, that is DNA and RNA. There are three nucleotide databases, GeneBank at NCBI, EMBL at EBI, and DDBJ, that is DNA Data Bank of Japan at Japan. Okay, all the three databases coordinate among themselves so that all the three of them are updated with the latest finding. This means if anybody submit the sequence to the gene bank, the gene bank will share that sequence with EMBL and DDBJ and vice versa. So today we'll start with gene bank. GeneBank is a genetic sequence database at NCBI. It was established in the year 1982 and are now maintained by National Center for Biotechnology Information. The DNA sequence can be submitted to GeneBank using several different methods. It contains publicly available nucleotide sequence for more than 40,000 named organisms obtained primarily through the submission from individual laboratories and bulk submission from large-scale sequencing project. It has a flat file structure, that is an ASC2 text file readable and downloadable by both human and computer. Then to the gene bank. The gene bank is built by direct submission from individual laboratories as well as bulk submission from large-scale sequencing center. Only original sequence can be submitted to gene bank. Original sequence means the sequence generated directly by the experiment. यानी जो primary data है, only the primary data can be submitted to the gene bank. Secondary data आप submit नहीं कर सकते. Secondary data किसको बोलते हैं? The data generated by the analysis of primary data. जो एक्सपेरिमेंट करके जो डेटा क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम, जो प्राइमरी उसका एनालिसिस करके, जैसे इफ यू हैव द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बाय यूजिंग ट्रांसलेशन टूल यू कैन जनरेट द अमीनो एसिड सीक्वेंस, है ना, अपन वही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से हम अमीनो एसिड सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा. तो इन द जीन बैंक यू कैन सबमिट ओनली द ओरिजिनल सीक्वेंसेस. ओके, direct submission can be made to the gene bank using Bankit. Bankit is one of the software which is a web-based form or standalone submission program, Table 2 ASN and Genome Workbench. Okay, Bankit जो है वो आपका web-based form है, means online. आप online Bankit में जाके directly sequence submit कर सकते हो. तो Bankit जो है generally कौन यूज करता है? इंडिविजुअल लैबोरेटरीज जिनको 5 to 10 सीक्वेंसेस सबमिट करना है, वो आप ऑनलाइन कर सकते हो. बट जो आपका लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग सेंटर है, जिनके पास बल्क सबमिशन है, ठीक है, जिनको थाउजेंड्स ऑफ द सीक्वेंस सबमिट करने हैं, तो दे कांट गो फॉर द वेब बेस्ड फॉर्म, दे गो फॉर द स्टैंड अलोन सबमिशन प्रोग्राम. स्टैंड अलोन सबमिशन प्रोग्राम में क्या होता है? दे हैव टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर. ठीक है, टेबल 2 ASN और जीनोम वर्कबेंच जो है वो क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है. वो दे विल हेल्प यू टू क्रिएट द सबमिशन फाइल फॉर द जीन बैंक. हमको क्या करना है? जीन बैंक पे जब भी आप कोई सीक्वेंस सबमिट करते हो तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट योर सीक्वेंस इनटू द जीन बैंक फॉर्मेट एंड आफ्टर दैट यू गो फॉर द सबमिशन. तो वेब बेस्ड फॉर्म में क्या होता है? बैंकेट में क्या स्टेप बाय स्टेप होता है, जिससे आपका जो सीक्वेंस है वो जीन बैंक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा. और अगर आप स्टैंड अलोन सबमिशन प्रोग्राम में जा रहे हो तो टेबल 2 ASN और जीनोम वर्कबेंच आप ऑफलाइन रह के क्या कर सकते हो? अपने आपके पास जितने भी सीक्वेंस है उनको आप जीन बैंक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ टेबल 2 ASN सॉफ्टवेयर एंड जीनोम वर्कबेंच एंड आफ्टर दैट यू विल ईमेल इट टू द जीन बैंक. आपका जो आपका फॉर्म क्रिएट हो गया, सबमिशन फॉर्म क्रिएट हो गया है, आप उसको फिर जीन बैंक को मेल कर देते हो. ठीक है, so there are two methods for the submission of the sequence to the gene bank, either a web-based form and a standalone submission program. Web-based form are generally used by the individual laboratories where they have to submit only 5 to 10 sequences, and the standalone submission program are used by the large-scale sequencing center. Upon the receipt of the sequence submission, the gene bank staff examine the originality of the data and assign the accession number to the sequence and perform the quality assurance check. Okay, once you submit your sequence, the gene bank staff members will examine the originality of the data. जो आपने डेटा सबमिट किया है वो ओरिजिनल है या नहीं, वो देखा जाता है, वो चेक करता है जीन बैंक स्टाफ. एंड आफ्टर चेकिंग दैट they will assign you the accession number. Accession number क्या होता है? Accession number is a unique identification number given to the DNA or the protein sequence record in the database.
डेटाबेस में जितने भी सीक्वेंसेस हैं उनको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेशन नंबर, ठीक है। And after assigning the accession number, they perform the quality assurance check. क्वालिटी इंश्योरेंस चेक में वो क्या देखते हैं कि आपने जो डेटा सबमिट किया है उसकी क्वालिटी कितनी सही है, ठीक है, उनकी क्वालिटी कैसी है, जैसे कि जो सीक्वेंस है उसमें कहीं वेक्टर कंटैमिनेशन तो नहीं है या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस कंटैमिनेशन तो नहीं है, वो चेक किया जाता है। देन along with the sequence you also give the feature of the sequences, ठीक है, उस सीक्वेंस के बहुत सारे हम फीचर्स भी सबमिट करते हैं, जोन इंटरॉन कहाँ पर है, उसका टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन दिया जाता है, जो आपने जिस भी ऑर्गेनिज्म से वो डीएनए सीक्वेंस आइसोलेट हुआ है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्वालिटी इंश्योरेंस चेक में चेक की जाती है। After doing all this, the submission are released to the public database where the entries are retrievable by the एंट्री सिस्टम। जब ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद जो आपका सीक्वेंस है वो पब्लिक डेटाबेस में रिलीज होता है, फ्रॉम वेयर द एंट्रीज आर रिट्राइवेबल बाय द एंट्री सिस्टम। एंट्रीज इज द सर्च इंजन ऑफ एनसीबीआई। ओके, so this is the home page of GeneBank. Here you can see the GeneBank resources. GeneBank resources क्या है आपका? GeneBank home, then submission type. Here from here you can see what type of sequence you can submit to the GeneBank. Then submission tool, what all tool you can use for the submission of sequence to the GeneBank. Then how to search on GeneBank, how to update the GeneBank record, है ना। एक बार आपने कोई भी सीक्वेंस GeneBank में सबमिट किए हो, इन फ्यूचर अगर उसमें आपको कुछ भी अपडेट करना है तो यू कैन क्लिक हियर, आप यहाँ पर जाकर अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे द GeneBank होम। GeneBank होम में क्या है, व्हाट इज GeneBank, हाउ टू एक्सेस GeneBank डेटा यूसेज एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। What is GeneBank? A GeneBank is a genetic sequence database, an annotated collection of all the publicly available DNA sequences. GeneBank is the part of International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC), which comprises the DNA Data Bank of Japan (DDBJ), European Nucleotide (ENA), and the GeneBank at NCBI. All the three organization exchange data on daily basis, ठीक है। INSDC जो है ये आपका 3 ऑर्गेनाइजेशन से मिलके बना हुआ है, DDBJ, ENA and GeneBank. All the three organization exchange data on daily basis, यानी कि जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है तीनों ही आपका न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, तो ये तीनों ही डेटाबेस में का जो डेटा है वो आपका कॉमन रहेगा, ठीक है। मीन्स if anybody have submitted their sequence to DDBJ, the DDBJ will exchange that data with ENA and GeneBank. Okay. Then how to access GeneBank? There are several ways to search and retrieve data from GeneBank. You can search GeneBank for the sequence identifier and annotation with entries nucleotide. एंट्रीज इज द सर्च इंजन ऑफ GeneBank, है ना। यहाँ पर आप सीक्वेंस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देन सर्च एंड अलाइन द GeneBank सीक्वेंस टू द क्वेरी सीक्वेंस यूजिंग BLAST sequence alignment tool. It is one of the tool which will align your query sequence with all the sequence present in the database and will give you the top 100 sequence which is closely related to the query sequence. Okay. Then search, link and download sequence programmatically using NCBI e-utilities. The ASN1 and flat file format are available at NCBI anonymous FTP server, file transfer protocol. ठीक है, file it is the way for download, upload and transfer file from one location to another. Then this is all about the GeneBank home. Then submission type. If you want to see what type of sequence can be submitted to the GeneBank, you can click on the submission type. The GeneBank submission type: standard, complete microbial genome, whole genome shotgun sequence, transcriptome shotgun assembly sequence, high throughput genomic sequence, third party annotation. This all type of sequences can be submitted to the GeneBank. Standard के अंदर क्या आता है?
Gene bank accept the mRNA and genomic sequence directly determined by the submitter. जो भी सबमिट कर रहा है वही वो सीक्वेंस को डिटरमाइन किया होना चाहिए, मतलब एक्सपेरिमेंटली वो डेटा जो है आपका क्रिएटेड होना चाहिए. The submission must include the information about the source organism and annotation provided by the submitter. More detail about adding annotation and sample file can be found in the GeneBank submission handbook. This is the guideline book where you can go to see more detail about adding annotation to the sequence. Okay. What type of data cannot be accepted by the gene bank? These all are the data which you can't submit it to the gene bank, like non-contiguous sequence, primer sequence, protein sequence with no underlying nucleotide submission, sequence containing a mix of genomic and mRNA sequence, sequence without the physical counterpart, and a sequence with a length less than 200 nucleotide. This type of sequences cannot be accepted by the gene bank. If you want to submit the complete microbial genomic sequence, then you can go to the bacterial genome submission guideline. For all the type of sequences, there is a guideline book where you can go to see how to submit your sequence to the gene bank. And if you want to submit the whole genome shotgun sequence, you can go to the S submission guideline. If you are going to submit the transcriptome shotgun assembly sequence, you can go to the TSA guideline book. For the high throughput genomic sequence, there is a HTG page which will guide you to for the submission of this such type of sequences. And for the third party annotation, you can go to the third party annotation guideline book. Okay. So these all type of sequences can be submitted to the gene bank. Next is the submission tool. What tool you can use for the submission of your sequence to the gene bank? How to submit data to the gene bank? So there are several options for preparing and submitting data to the gene bank. First is the web-based submission tool that automatically submitted to the gene bank. है ना, यानी कि अगर आप बैंकेट वगैरह ओपन करते हो, उसको फिलअप करोगे, आखिरी में देयर इज एन ऑप्शन फिनिश सबमिशन, उसको आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका जो सीक्वेंस है वो जीन बैंक में जाके सबमिट हो जाएगा. जो सेकंड होता है आपका स्टैंड अलोन सबमिशन प्रोग्राम, है ना, वो क्या करता है, टेबल टू ASN एंड जीनोम वर्कबेंच विल हेल्प यू टू क्रिएट द सीक्वेंस रिकॉर्ड फॉर द सबमिशन टू द जीन बैंक, है ना, वो आपको रिकॉर्ड क्रिएट करके देगा एंड दैट रिकॉर्ड यू हैव टू ईमेल इट टू द जीन बैंक, है ना. यहाँ पे डायरेक्टली सबमिट नहीं होता है, ये आपका ऑफलाइन है. यहाँ पे आप जाके अपने सीक्वेंस को जीन बैंक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उस रिकॉर्ड को आपको जीन बैंक को ईमेल करना होता है. तो ये जो आपका सबमिशन प्रिपरेशन टूल है, दे आर जनरली यूज्ड बाय द लार्ज स्केल सीक्वेंसिंग सेंटर वेयर बल्क सबमिशन इज देयर. ओके, तो वेब बेस्ड सबमिशन टूल में आएगा आपका बैंकेट एंड सबमिशन पोर्टल. Bankit is a WW based submission tool with wizard to guide the submission process. There is a guideline which will guide you to how to submit your sequence. Then submission portal is a unified system for multiple submission type. Currently only the ribosomal RNA, rRNA, ITS, mitozoan, mitochondrial, COX1, influenza, norovirus, dengue sequence can be submitted with a gene bank component by using this tool. Submission preparation tool which required uploading by the submission portal or email to the gene bank when relevant, है ना. यहाँ पर submission preparation tool क्या करेगा, this tool will help you to create the submission record. Now आप करेगा which you have to upload either by the submission portal or email it to the gene bank. Okay. Table to ASN is a command line program that replaces the older tool TBL to ASN. This is the older version and this is the new version. Automates the creation of sequence record for the submission to the gene bank. It uses primarily for the submission of annotated genome and a large batches of sequences and is available by FTP for the use on Mac, PC and Unix platform. Genome Workbench offers a rich set of integrated tool for studying and analyzing the genetic data. ठीक है, जीनोम वर्कबेंच में बहुत सारे टूल्स भी प्रेजेंट है
which will help you for analyzing your data. Okay. After that, search GenBank. These are the tools for the submission. And how to search on GenBank. If you want to retrieve data from the GenBank, you have to go to the search GenBank. On clicking this will open up the search engine. This is the box where you can type your text. जो भी आपका क्वेरी है, जिसका भी आपको सीक्वेंस को सर्च करना है, वो नाम अपन यहाँ पे लिखेंगे. देन गो फॉर द सर्च. ओके. जैसे यहाँ पे मैंने आपको सर्च किया होमो सैपियंस HFE जीन. ओके. तो दिस विल ओपन अप दिस पेज. यहाँ पे आपके फिल्टर्स प्रेजेंट है. यहाँ पे आप फिल्टर्स लगा देख सकते हो. So this all are the sequences of HFE gene present in the GenBank. तो अपन यहाँ पे select करेंगे आपको जो भी देखना है. ठीक है. See जो GenBank है, यहाँ पर even though you are on the nucleotide database, it is showing you the link for the protein database and the taxonomic database, है ना. यानी ये जो आपका HFE जीन है, इसका यहाँ पर प्रोटीन सीक्वेंस भी प्रेजेंट है और इसका टैक्सोनॉमी भी प्रेजेंट है. तो अगर आपको इसका प्रोटीन सीक्वेंस देखना है तो यू कैन क्लिक ऑन द प्रोटीन, and if you want to see the taxonomic classification, you can go for to the taxonomic database. You can extract the nucleotide sequence in various format, GenBank format, FASTA format, graphics format. ठीक है. PopSet जो है, PopSet is a database which contain the related DNA sequence derived from the same population, है ना. यही population से, same population से जो और भी सीक्वेंसेस एक्सट्रैक्ट हुए हैं, उसका लिंक आपको PopSet में मिलेगा. इट इज वन ऑफ द डेटाबेस विच कंटेन द रिलेटेड सीक्वेंस डिराइव्ड फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन सबमिटेड टू द GenBank. ओके. फिर आपको जो भी सेलेक्ट करना है आप उसको क्लिक करोगे. ठीक है. जैसे मैंने फर्स्ट वाले को क्लिक किया, GenBank फॉर्मेट मुझे देखना है, तो GenBank को मैंने क्लिक किया, तो इट विल ओपन अप दिस पेज. दिस इज द GenBank फॉर्मेट. ठीक है. GenBank फॉर्मेट है विच स्टार्ट्स विद द वर्ड लोकस. लोकस से स्टार्ट होता है. ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम बोलते हैं एनोटेशन सेक्शन. इसमें क्या है, उस सीक्वेंस के फीचर्स दिए हुए हैं. और ये लास्ट में आपका सीक्वेंस सेक्शन होता है. द सीक्वेंस सेक्शन विल स्टार्ट्स विद द वर्ड ओरिजिन एंड एंड विद डबल लैश. ये आप लोग को ध्यान में रखना है. ठीक है. दिस इज द GenBank फॉर्मेट. ठीक है. लोकस, डेफिनेशन, एक्सेशन, वर्जन, कीवर्ड, सोर्स, ऑर्गेनिज्म, ये सारे ये सीक्वेंस के जो जितने भी फीचर्स सबमिटर को पता होते हैं, वो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर देता है ड्यूरिंग सबमिशन. ठीक है. यू कैन व्यू द सेम सीक्वेंस इन द फास्टा फॉर्मेट. आप फास्टा में क्लिक करोगे तो आपको फास्टा फॉर्मेट मिल जाएगा. ग्राफिक में क्लिक करोगे तो ग्राफिक फॉर्मेट मिल जाएगा. PopSet में क्लिक करोगे तो यू विल गेट द लिंक ऑफ रिलेटेड DNA सीक्वेंसेस. ठीक है. देन लास्ट इज द अपडेट GenBank रिकॉर्ड, है ना. इफ यू वांट टू update your record in the GenBank, you can go to the update GenBank record. यहाँ पे आप जाओगे और जो भी आपको अपने रिकॉर्ड में अपडेट करना है वो अपडेट कर सकते हो. ठीक है. यू कैन अपडेट योर एग्जिस्टिंग GenBank रिकॉर्ड एट एनी टाइम using the different file type described below. Okay. If you are updating a multiple record, please send a list of all the accession to be updated at the top of your request. ठीक है. आप कहाँ पे अपडेट कर सकते हो. यू कैन अपडेट द सोर्स इंफॉर्मेशन, यू कैन अपडेट द एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, है ना. आपने जैसे जब भी आपने अपने सीक्वेंस को सबमिट किया है, उस समय अगर आपका पेपर रिलीज नहीं हुआ था तो लेकिन प्रेजेंटली अगर आपका रिलीज हो गया तो उसमें अगर आप पब्लिकेशन में कुछ भी अपडेट करना है तो यू कैन गो टू द पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन. यहाँ पे क्लिक करोगे आप अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो. इफ यू वांट टू update on the nucleotide sequence, you can click here. You can for updating the feature and annotation, you can click here. यहाँ पे क्लिक करके आप अपने GenBank रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हो. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द GenBank resources. Coming to the GenBank flat file format, the GenBank consists of the annotation section and the sequence section. The start of annotation section is marked by the line beginning with the word locus. The start of the sequence section is marked by the line beginning with the word origin, and end of the section is marked by the line only double lash. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, देखो locus से स्टार्ट होता है. दिस इज द annotation section which starts with the word locus, and this is the sequence section
origin and end with double dash. अब एक एक का मैं आप लोग को मीनिंग बताऊंगी. लोकस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन, एक्सेशन, वर्जन. ओके, first is the locus. This can be defined as the title given by the gene bank itself to the name of the sequence entry. It consists of 6 different subfields, namely locus name, sequence length, molecular type, topology, gene bank division and modification date. Okay, locus क्या है, जैसे ही आप अपना सीक्वेंस सबमिट करते हो जीन बैंक में, द जीन बैंक विल गिव यू द टाइटल, ठीक है, टू द सीक्वेंस एंट्री, उसको हम बोलते हैं लोकस. ठीक है, लोकस में 6 डिफरेंट सब फील्ड्स हैं. देखो 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, द फर्स्ट वन इज द लोकस नेम. दिस इज द लोकस नेम which is similar to the accession number for the sequence. जो sequence का आपका accession number होगा वही locus name होता है. Second is the sequence length. ठीक है, जैसे 1 to 1 4 6 base pair. It is the total number of nucleotide base pair in the sequence record. The third one is the molecular type. The type of molecule that was sequenced. The various types are mRNA, rRNA, snRNA and DNA. ना, जैसे यहाँ पे आपका ये DNA का सीक्वेंस है तो यहाँ पे DNA लिखा हुआ है. The next is the topology. It defines the topological property of the molecule that was sequenced. It may be linear or circular. जैसे अगर ये प्लाज्मिड का सीक्वेंस होता तो वो सर्क्यूलर होता. ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर डीएनए इसलिए आपका लीनियर है. The next is the gene bank division. देखो PRI. The gene bank has different division. In this example, PRI stands for the primate sequences. The other division includes ROD, that is rodent sequence, MAM, that is the other mammalian sequence, PLN is a plant, fungal and algal sequence, BCT for the bacterial sequence. है ना, जीन बैंक ने क्या किया है, सारे सीक्वेंसेस को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, तो वो आता है आपका जीन बैंक डिवीजन. जैसे पीआरआई जो है वो आपका प्रीमेट सीक्वेंस है. प्रीमेट के अंदर आता है आपका ह्यूमन, मंकी एंड एप. ये तीन जो है आपका प्रीमेट सीक्वेंस में आएगा और बाकी जितने भी मैमल्स हैं वो एमएएम के अंदर आएंगे. ठीक है, पीएलएन जो है आपका प्लांट, फंगल एंड एल्गल सीक्वेंस को उन्होंने पीएलएन डिवीजन के अंदर रखा है. बीसीटी के अंदर उन्होंने बैक्टीरियल सीक्वेंसेस को रखा है. तो यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस कौन से ऑर्गेनिज्म का है. The last one is the modification date, that is the date of most recently modification made to the record. यहाँ पे कौन सी डेट रहेगी, most recent modification का, last modification वो रिकॉर्ड जब भी लास्ट मॉडिफाई हुआ है वो डेट आपकी यहाँ पर रहेगी. तो दिस इज द लोकस. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन, है ना, जैसे अपन ने यहाँ पे भी देखा है. देखो ये डेफिनेशन. Next is the definition. It is a brief description of the sequence. The description, organism name, gene and the protein name. क्या क्या हो सकता है डेफिनेशन में आपका, ऑर्गेनिज्म का नाम, जीन एंड द प्रोटीन नेम. होमोसैपियंस HFE जीन मैंने लिखा है. Accession. Accession is a unique identifier associated with each nucleotide sequences present in the database. This number never change even if the record is modified. Accession number कभी भी change नहीं होगा even if the record is modified. Then next is the version. जैसे अपन यहाँ पे भी आप देखेंगे accession के नीचे क्या है उसका version. It is identification number assigned to the single specific sequence in the database. If any change are made to the sequence data, the version part of the number will be increased by 1. For example, U12345.1 will become U12345.2. जितने बार मॉडिफिकेशन होगा रिकॉर्ड में, जो वर्जन वाला पार्ट है वो 0.1 जो है इंक्रीज हो जाता है. यानी अगर सिर्फ 0.1 लिखा है यानी कि अभी तक रिकॉर्ड में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है. 0.2 रहा अगर तो आप बोलोगे कि एक बार इसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है. 5 रहा तो हमको समझ में आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड वाज मॉडिफाइड बाय 5 टाइम्स. ना, सबमिशन के बाद उसमें 5 टाइम्स मॉडिफिकेशन हो चुके हैं. तो वर्जन जो है वो क्या होता है, हमेशा 0.1 आपका इंक्रीज होगा. द वर्जन पार्ट ऑफ द नंबर विल बी इंक्रीज्ड बाय 1 if any change is made to the sequence data. Okay. The next one is the keyword. Keyword can be any word which is used to index the
एंट्री, है ना। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे अपन आर्टिकल्स में भी पढ़ते हैं, कीवर्ड्स हमेशा अलग लिखा होता है एक्सट्रैक्ट के नीचे, दे आर द वर्ड दैट डिफाइंस व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। आपका कंटेंट किस बारे में है, आप वो कीवर्ड्स के थ्रू जान सकते हो। जो सर्च इंजन है वो हमेशा कीवर्ड्स से ही आपका सर्च रिजल्ट पेज निकालता है। तो ऑलवेज you have to give the correct keyword to your article or to your entry, है ना, so that if the people search about your content, your article must be on the top of the search result page, है ना। आपको हमेशा कीवर्ड्स जो है सही देना है, करेक्ट देना है, ताकि अगर कोई भी अगर आपके आर्टिकल के बारे में, आपकी एंट्री के बारे में अगर सर्च कर रहा है तो आपका एंट्री जो है वो सर्च रिजल्ट पेज में आना चाहिए, ठीक है। तो कीवर्ड्स जो है वो क्या होता है, दे आर द एनी वर्ड विच आर यूज्ड फॉर इंडेक्सिंग द एंट्रीज। जैसे यहाँ पे मैंने हीमोक्रोमेटोसिस HFE जीन डाला, दे आर द कीवर्ड्स। तो कोई भी अगर HFE जीन करके सर्च करेगा तो ये एंट्री आपकी ओपन होगी, या फिर हीमोक्रोमेटोसिस करके सर्च करेगा तो भी आपकी ये एंट्री ओपन होगी। Next is the source. They are usually contain the abbreviated or the common name of the source organism, जैसे यहाँ पे human लिखा है। The next is the organism, the scientific name, usually genus and species, Homo sapiens. In the end, the taxonomic lineage according to the gene bank is specified. फिर उसके बाद उसका classification यहाँ पे दिया जाता है। The next one is the references. It includes the journal from which the sequence was derived and the citation of publication by the sequence author that support the information present in the sequence record. Several references may be included in one record. ठीक है। ऑर्गेनिज्म के नीचे क्या रहता है, अपना रेफरेंसेस रहता है। रेफरेंसेस में हम क्या डालेंगे, वो जर्नल का पेपर डालेंगे जिससे आपने सीक्वेंस एक्सट्रैक्ट है, जिसमें सीक्वेंस आपका पब्लिश हुआ है। प्लस हम वो सारे पब्लिकेशंस के नाम भी डाल सकते हैं विच विल सपोर्ट द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सीक्वेंस रिकॉर्ड। हम बहुत सारे इंफॉर्मेशंस यहाँ पे दे रहे, सीक्वेंस के हम बहुत सारे फीचर्स भी डाल रहे हैं, तो वो सारे पेपर्स जो उन फीचर्स को सपोर्ट करे वो पेपर को भी हम यहाँ पर साइट कर सकते हैं। तो सेवरल रेफरेंसेस में बी इंक्लूडेड इन द सिंगल रिकॉर्ड। एक सीक्वेंस में हम मल्टीपल रेफरेंसेस दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द फीचर. This consists of the information derived from the sequences such as biological source, coding region, exon, intron, promoter, splice patterns, mutation, etc. फीचर में हम क्या डालेंगे, वो सारी चीजें जो भी आप अपने सीक्वेंस के बारे में जानते हो, जितने भी फीचर्स आप जानते हो, सारी इंफॉर्मेशन हम फीचर टेबल में डालते हैं। ठीक है। एंड द लास्ट इज द सीक्वेंस फॉर्मेट. That beginning of the sequence is determined by the keyword origin and end is marked by the double dash. लास्ट में आपका सीक्वेंस होता है, वो स्टार्ट होगा ओरिजिन से, ओरिजिन के बाद आपका सीक्वेंस स्टार्ट होगा और एंड में आपका डबल डैश रहेगा। ओके, तो दिस इज द जीन बैंक फॉर्मेट, है ना। जीन बैंक फॉर्मेट ऐसा होता है। शुरू में आपका एक्सेशन एनोटेशन सेक्शन रहता है, locus, definition, accession, version, keyword, source, organism, references, and feature. This all comes under the annotation section. And at the last, there is the sequence section, which starts with the word origin and end with double slash. Okay. And the gene bank division, the gene bank division shows the gene bank division to which the record belongs and is indicated by the three-letter abbreviation. For example, PRI for the primate sequence, ROD for the rodent sequence, MAM for the other mammalian sequence, VRT for the vertebrate sequence, INV for the invertebrate, PLN for the plant fungal algal, VCT for the bacterial sequence, VRL for the viral sequence. In this way, the gene bank have divided all the sequences in 18 different division. Okay. Next is how to submit sequence to the gene bank. There are several options for submitting data to the gene bank. First is the web-based submission tool, and second is a standalone submission tool. The web-based submission tool that are automatically submitted to the gene bank. The example of it is a Bankit and submission portal. Bankit is a www-based submission tool with wizard to guide the submission process.
Submission portal is a unified system for the multiple submission type. Currently, only the ribosomal RNA, rRNA-ITS, mitozoan mitochondrial COX1, influenza sequences can be submitted to the gene bank using this tool. These two are the web-based tool. आप वहाँ पे सबमिशन स्टार्ट करोगे, लास्ट में आपका कंप्लीट सबमिशन करके एक लिंक रहेगा, उसको क्लिक करोगे तो आपका सीक्वेंस जो है वो डायरेक्टली जीन बैंक में जाके सबमिट हो जाएगा. सेकेंड होता है आपका स्टैंड अलोन सबमिशन टूल विच विल हेल्प यू टू क्रिएट द सबमिशन रिकॉर्ड. आपका ये हेल्प करेगा, सबमिशन रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, उसको फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा या फिर ईमेल करना पड़ेगा टू द जीन बैंक. ठीक है, ऑटोमेटिकली सबमिट नहीं होता है. आपका स्टैंड अलोन सबमिशन टूल जो है वो आपका ऑफलाइन टूल है. ठीक है, which required uploading by the email to the gene bank when relevant. Table 2 ASN is a command line program which automates the creation of sequence record for the submission to the gene bank. It is primarily for the submission of complete genome and a large batches of sequences and is available by FTP for the use on Mac, PC and Unix platform. Genome Workbench offers a rich set of integrated tools for studying and analyzing the genetic data. In the Genome Workbench, there are various tools present which will help you for the analysis of your genetic data. So these two are the standalone submission tool, offline tools, which are generally used by the large scale sequencing center where bulk submission is required. So this is the home page of Bankit. यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि Bankit में कैसे हम सबमिट करते हैं सीक्वेंस को. This is the home page of Bankit. See what type of sequence data what type of sequence data do you have. है ना, आप कौन सा सीक्वेंस सबमिट कर रहे हो उसमें आपको क्लिक करना है. ठीक है, SRS है, SARS है, देन राइबोसोमल, माइटोजोन, अगर ये कोई सीक्वेंस है तो आप इनमें क्लिक करोगे, या नहीं तो आपको सीक्वेंस डेटा नॉट लिस्टेड अबव यहाँ पे क्लिक करोगे. ठीक है, mRNA जीनोमिक सीक्वेंस अगर ये है तो आप यहाँ पे टिक करोगे. देन for before submission you must have the sequence data in the FASTA format and you must have to know the name of the organism from where the sequence data were isolated and other descriptive data and sequence feature. ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए during submission. Okay, if you have all this then you can go for the submission. Start में हम click करेंगे. This is the first page. कि बैंकेट जो है आपका प्रीवियस सबमिशन की हिस्ट्री रखता है अगर आपने कंप्लीट सबमिशन नहीं किया है तो. अगर आपने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फिलअप करके छोड़ दिया है तो आप उसको कंटिन्यू भी कर सकते हो. ठीक है, और अगर आपको न्यू सबमिशन करना है तो यू कैन गो टू द स्टार्ट बैंकेट सबमिशन. This is the first page where you have to fill up the contact information like first name, last name, department, institute. ये सारा चीज आप फिल करके लास्ट में आपका कंटिन्यू है, उसको कंटिन्यू को टिक करोगे. देन देखो यहाँ पे अब आपका स्टेप्स आ गए. अब जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे ये आपका लाइन आगे बढ़ते जाएगा. ठीक है, कॉन्टेक्ट हमने डाल दिया. नेक्स्ट इज द रेफरेंस, है ना. हियर यू हैव टू गिव द सीक्वेंस ऑथर. सीक्वेंस ऑथर नाम आपको डालने हैं. यू कैन ऐड मोर ऑथर्स, अगर एक से ज्यादा ऑथर है तो यू कैन क्लिक ऑन ऐड. ठीक है, देन रेफरेंस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपका सीक्वेंस इंफॉर्मेशन होगी. देन रेफरेंस इंफॉर्मेशन, प्लीज प्रोवाइड द टाइटल एंड रिलेवेंट पब्लिकेशन डिटेल ऑफ द पेपर दैट डिस्कस दिस सबमिशन. ठीक है, आपको यहाँ पे पब्लिकेशन डालना है जिससे आपका ये सीक्वेंस जिसमें आपने पब्लिश किया है या फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन इस सीक्वेंस से रिलेटेड देने वाले हो उसके सपोर्टिंग अगर कोई पेपर है उसको अगर आपको साइट करना है तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर देनी है. तो अगर पेपर आपका पब्लिश्ड है, अनपब्लिश्ड है तो यू कैन क्लिक ऑन अनपब्लिश्ड. अगर इन प्रेस है यानी कि एक्सेप्ट हो गया है लेकिन पब्लिश नहीं हुआ है तो आप इन प्रेस को क्लिक करोगे. और अगर आपका पब्लिश्ड हो गया है तो आप पब्लिश को टिक करोगे एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फिल अप द इंफॉर्मेशन. ठीक है, देन रेफरेंस ऑथर एज सेम एज दैट ऑफ द सीक्वेंस ऑथर. अगर सीक्वेंस ऑथर और रेफरेंस ऑथर सेम है तो आप यहाँ पे टिक करोगे. और अगर यहाँ पे रेफरेंस ऑथर में अगर आपको न्यू ऑथर्स ऐड करने हैं तो यू कैन टिक ऑन हियर स्पेसिफाई द न्यू ऑथर. यहाँ पे टिक करोगे यू कैन ऐड मोर ऑथर्स हियर. ठीक है, देन क्लिक कंटिन्यू. देन रेफरेंसेस हो गए. देन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, व्हाट मेथड वर यूज्ड टू ऑब्टेन दिस सीक्वेंस. कौन से मेथड से आपने सीक्वेंसिंग की है वो मेथड आपको यहाँ पर टिक करना है. ठीक है,
जैसे मैंने यहाँ पे सेंगर डाइडिऑक्सी सीक्वेंसिंग मेथड को टिक किया है। आर दिस सीक्वेंस आर अनअसेंबल्ड सीक्वेंस और असेंबल्ड सीक्वेंस? अनअसेंबल्ड यानी पार्शियल सीक्वेंसिंग है या कंप्लीट सीक्वेंसिंग है? तो पार्शियल सीक्वेंसिंग है तो पार्शियल में टिक करोगे, कंप्लीट है तो कंप्लीट में टिक करोगे। देन यू हैव टू कंटिन्यू। देन नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी हो गई। नेक्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियोटाइड। सबमिशन रिलीज डेट इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग, है ना। आपको जैसे आपने सबमिट किया वैसे ही आपको अपना सीक्वेंस को पब्लिकली रिलीज करना है या फिर आपको अपना डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो वो चीज आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको अपना डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ पे आपको डेट डाल सकते हो, बट डेट मस्ट बी आफ्टर 6 month फ्रॉम टूडे एंड बिफोर 10 years फ्रॉम टूडे। इस इनके बीच का ये समय होना चाहिए। ठीक है। देन हियर यू हैव टू गिव द मॉलिक्यूलर टाइप। कौन से आपका जो सीक्वेंस है वो कौन से मॉलिक्यूल का है, जीनोमिक डीएनए, एमआरएनए, सीडीएनए, आरआरएनए, वो यहाँ पे मेंशन करना है। देन यू हैव टू मेंशन द टोपोलॉजी, लीनियर है या सर्क्यूलर है। आर यू सबमिटिंग द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनली वायरल, मतलब अपने कंप्लीट सीक्वेंस कर रहे हो, पार्शियल सीक्वेंस कर रहे हो, यस और नो यू हैव टू टिक। then you have to give the nucleotide sequence format। ठीक है, you have to submit the sequence in FASTA format। FASTA format में हमको सबमिट करना है। FASTA format जो है वो स्टार्ट होता है विद अ साइन ग्रेटर देन, है ना। यहाँ पे उसने एक एग्जांपल भी डाल के दिया है, ग्रेटर देन सीक्वेंस 1, फिर ऑर्गेनिज्म का नाम, फिर डेफिनेशन, एंड देन यू हैव टू गिव द सीक्वेंस, है ना। इस फॉर्मेट, अगर मल्टीपल सीक्वेंस है तो सीक्वेंस 1, सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 3 ऐसा करके आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन गो टू द फास्टा हेल्प। यहाँ पे आप टिक करोगे तो वो बताएगा कि कैसे आपको सीक्वेंस क्रिएट करना है। ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अकॉर्डिंगली यू हैव टू पेस्ट योर डेटा। इस फॉर्मेट में आपको फास्टा फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा पेस्ट करना है। यू कैन ऑल्सो अपलोड फाइल। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस हैं, 5 to 10 सीक्वेंस है, तो आप उसका फाइल क्रिएट करके फास्टा फॉर्मेट में सारे सीक्वेंसेस को करके यहाँ पर डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो। आफ्टर दैट यू हैव टू कंटिन्यू। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये पेस्ट करके दिखाया है। देन कंटिन्यू। सबमिशन कैटेगरी। सबमिशन कैटेगरी में यू हैव टू टेल whether your sequence is original और थर्ड पार्टी एनोटेशन। ओरिजिनल यानी कि डायरेक्टली सबमिटेड, डायरेक्टली सिक्वेंस्ड बाय द सबमिटर, है ना। सबमिटर ने ही उसको एक्सपेरिमेंट करके सिक्वेंसिंग की है, या फिर थर्ड पार्टी एनोटेशन। थर्ड पार्टी एनोटेशन यानी कि सेकेंडरी सीक्वेंस, सेकेंडरी डेटा। ठीक है, द डेटा डिराइव्ड फ्रॉम द अदर प्राइमरी सीक्वेंस डेटा। आपका ओरिजिनल सीक्वेंस है तो यू हैव टू क्लिक ऑन द ओरिजिनल एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू। देन सोर्स मॉडिफायर। यहाँ पे आपको सोर्स मॉडिफायर्स बताने, लोकेशन क्या है, कहाँ से आपने वो डीएनए निकाला है। ठीक है। देन सोर्स मॉडिफायर, प्लीज चूज द मॉडिफायर एंड एंटर वैल्यू। तो यहाँ पे आप जितने भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं रिगार्डिंग योर सीक्वेंस वो हमको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैंने आइसोलेशन सोर्स बताया, ऑर्गेनिज्म मैंने आइसोलेट किया था फ्रॉम द मैनग्रोव सॉइल्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वो सब हमको ऐड करना है। देन वी हैव टू कंटिन्यू। देखो यहाँ पे आपका एक टेबल क्रिएट होते जाएगा, जैसे जैसे आप सोर्स मॉडिफायर ऐड करोगे यहाँ पे एक टेबल बनते जाता है। ठीक है, फिर कंटिन्यू करेंगे हम। देन फीचर, लास्ट में आपका फीचर आएगा। यू हैव टू ऐड द फीचर्स। आप अपने सीक्वेंस के जितने भी फीचर्स दे सकते हो, एक्सॉन, इंटरॉन, सीडीएस, आपको जो भी मालूम है आपके सीक्वेंस का वो सारे फीचर्स आप यहाँ पर डालोगे। ठीक है, ऐड फीचर बाय कंप्लीटिंग द इनपुट फॉर्म्स, है ना। सीडीएस, एमआरएनए, जीन, प्रोवाइडिंग इंटरवल्स, जो भी आपको पता है वो सारी चीजें आप यहाँ पे टिक करके ऐड करोगे। देन यू हैव टू कंटिन्यू। एंड लास्ट में रिव्यू एंड करेक्ट, है ना। ये आपका सारा जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली है उसके अकॉर्डिंग जीन बैंक ने देखो अपना फॉर्मेट क्रिएट किया है, उसको आप चेक करोगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द फिनिश सबमिशन। देखो ये पूरा आपका आ जाता है, जो भी अपन ने इंफॉर्मेशन डाली है वो सारी इंफॉर्मेशन जीन बैंक फॉर्मेट में आ गई। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन फिनिश सबमिशन। तो आपका सीक्वेंस जो है डायरेक्टली जीन बैंक में ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए। ठीक है, this is about Bankit. This is how you have to submit your sequence to GenBank using Bankit. Then data curation.
The sequence submitted to the gene bank go through the series of validation check conducted by the professional database staff. The quality assurance procedure are designed to detect the vector or other sequence contaminants such as mitochondrial sequence, which should be absent from the nuclear encoded gene, mistranslation of the coding sequence, and to ensure a proper taxonomic classification. ये सारी चीजें आपकी quality assurance procedure में check होती है. As a final check, all records submitted through the direct submission process at GeneBank are checked by at least one PhD level molecular biologist. Accession number are issued to the submitter and provisional GeneBank record are made available for approval prior to the public release. Author may request that their data remain confidential until publication. Okay? जैसे ही आप जीन बैंक में अपना सीक्वेंस सबमिट करते हो तो फिर बहुत सारे वैलिडेशन चेक होते हैं जिसमें आपका डेटा ओरिजिनल डेटा है कि नहीं वो चेक होगा. देन उसकी क्वालिटी चेक होगी. इन द क्वालिटी इंश्योरेंस चेक दे चेक द वेक्टर और द अदर कंटामिनेशन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल सीक्वेंस कंटामिनेंट्स तो नहीं आ गए, जो कोडिंग रीजन का मिस ट्रांसलेशन तो नहीं है, या फिर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो करेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीजें चेक होती है. आफ्टर ऑल दैट एक फाइनल चेक होता है बाय द PhD लेवल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट. आफ्टर डूइंग ऑल दिस द एक्सेशन नंबर इज इशूड टू द सबमिटर. एक्सेशन नंबर मिल जाता है. ऑथर जो है दे मे रिक्वेस्ट दैट द डेटा रिमेन कॉन्फिडेंशियल अंटिल पब्लिकेशन. है वो अपन ने सबमिशन के टाइम भी मैंने आपको दिखाया था. एक इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग आपको अपना डेटा रिलीज करना है और यू कैन गिव योर कस्टमाइज डेट. है ना, आप अपने डेटा को कुछ समय के लिए कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते हो. यू कैन रिक्वेस्ट जीन बैंक to keep your data confidential until publication. Then updates and correction. In addition to the new data, author is strongly encouraged to submit updates and correction to the record. For instance, if the gene name is now known or have a better understanding of enzyme for which the sequence was previously submitted, it is highly desirable that the database be informed for this new information so that record can be properly updated. है ना, अपन ने देखा था अपना जीन बैंक रिसोर्सेज में लास्ट लिंक जो था वो अपडेट द जीन बैंक रिकॉर्ड था. है ना, तो आपने अभी जो भी सीक्वेंस सबमिट किया है, इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है रिगार्डिंग दैट डेटा, तो आप जो डेटाबेस है, जो जीन बैंक है, वो हमेशा ऑथर को एनकरेज करता है कि यू शुड इन्फॉर्म द डेटाबेस अबाउट दिस न्यू इंफॉर्मेशन, ताकि जो डेटाबेस है वो हमेशा आपका अपडेटेड रहे. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जीन बैंक. मैं भी आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाती हूँ गूगल में. हाउ टू सर्च जीन बैंक. तो आप जीन बैंक NCBI करके सर्च करोगे. आपका जीन बैंक जीन बैंक का होम पेज आपका ओपन हो गया. दिस आर द जीन बैंक रिसोर्सेज जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया है. So this is the GeneBank home. What is GeneBank? How to access GeneBank? GeneBank data usage confidentiality. Then submission type. You can see what type of sequence you can submit to the GeneBank. है ना, submission type में जाओगे तो आपको ये सब चीजें मिल जाएगी. Standard, microbial, complete microbial genome, whole genome shotgun sequence, transcriptome shotgun assembly sequence, high throughput sequences, थर्ड पार्टी एनोटेशन, देन टारगेटेड लोकस स्टडी. ये सारी चीज़ों की गाइडलाइन भी है ना. इफ यू वांट टू सबमिट द TSA सीक्वेंस, यू कैन गो टू द TSA सबमिशन गाइडलाइन. नेक्स्ट इज द सबमिशन टूल. व्हाट टाइप ऑफ टूल you can use to submit data to the gene bank. तो यहाँ पे देखो जो मैंने आप लोग को पढ़ाया अभी, वेब बेस्ड सबमिशन टूल, बैंकेट एंड सबमिशन पोर्टल, एंड द सबमिशन प्रिपरेशन टूल में आएगा आपका टेबल टू ASN एंड जीनोम वर्कबेंच. ओके, this tool will help you to create the sequence record which you have to upload by the submission portal or email it to the gene bank. Okay. The next is searching gene bank. If you want to retrieve data from the gene bank record,
यू कैन गो टू द सर्च जीन बैंक, है ना, यहाँ पर फिर आप जो भी आपको अपना टेक्स्ट सर्च करना है, जैसे कैड बाफना मैं लिखती हूँ, वो डाल के आप सर्च करोगे, सी दिस विल ओपन अप द पेज। यहाँ पे आपके फिल्टर्स प्रेजेंट है, यू कैन फिल्टर दिस। जैसे अगर आपको फंगल का देखना है तो आप फंगल टिक कर सकते हो, जीनोमिक देखना है तो ऐसा आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हो। See, even though you are on the nucleotide database, it will showing you the link for the cross reference database, है ना, इसका ही आपका ये सीक्वेंस का प्रोटीन डेटाबेस में भी इंफॉर्मेशन है, पबमेड में आपका लिटरेचर भी प्रेजेंट है, टेक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से आप दूसरे डेटाबेस में भी स्विच कर सकते हो। देन यू कैन सी द सीक्वेंस इन जीन बैंक फॉर्मेट, फास्टा फॉर्मेट और ग्राफिक फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में आप सीक्वेंसेस को देख सकते हो। तो जैसे मैंने जीन बैंक ओपन किया तो देखो ये जीन बैंक फॉर्मेट आपका ओपन हो गया है। जीन बैंक फॉर्मेट कैसे पता चलता है? इट स्टार्ट्स विद द वर्ड लोकस, देन डेफिनेशन, एक्सेशन, वर्जन, कीवर्ड्स, ये सारा अपन ने भी डिस्कस किया है, फीचर टेबल रहेगा, एंड दिस इज द सीक्वेंस सेक्शन which starts with the word origin and end with double slash. Okay, then if you want to see the FASTA format, you can click on FASTA. देखो फास्टा फॉर्मेट ओपन हो गया। फास्टा फॉर्मेट कैसे स्टार्ट होता है? इट विल स्टार्ट विद अ साइन ग्रेटर देन, फिर आपका एक्सेशन वर्जन रहेगा, फिर डेफिनेशन रहेगा, एंड देन सीक्वेंस रहेगा। ठीक है, दिस इज द फास्टा फॉर्मेट। और ग्राफिक फॉर्मेट में ग्राफिकल फॉर्म में रहेगा। दिस इज द graphical format of the sequence. ठीक है, तो you can see the, you can extract the sequence in various format. तो ये आपका जीन बैंक फॉर्मेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट update the gene bank record. If you want to update your gene bank record, you go to the update gene bank record. तो यहाँ पर अगर आपको सोर्स इंफॉर्मेशन अपडेट करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द सोर्स इंफॉर्मेशन। इफ यू वांट टू अपडेट योर पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन, यू कैन क्लिक हियर। If you want to update your sequence, you can click here, and if you want to update feature and annotation, you can click here. So for updating the GenBank record, आपको यहाँ पर ये वाले लिंक में जाना है। ठीक है, then this is about the GenBank resources. Next is Bankit, how to submit data to the GenBank. Bankit NCBI. For that you have to go to the Bankit NCBI. तो Bankit NCBI टिक करोगे, देखो ये आपका होम पेज ओपन हो गया जो मैंने आप लोग को दिखाया था। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट डेटा डू यू हैव, है ना, आप कौन सा सीक्वेंस सबमिट करने वाले हो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने किया सीक्वेंस डेटा नॉट लिस्टेड अबव mRNA, क्योंकि हमको जीनोमिक डीएनए सबमिट करना है। ठीक है, सो फॉर बिफोर सबमिशन यू मस्ट हैव द सीक्वेंस डेटा इन द फास्टा फॉर्मेट. You must have to know the name of the organism where the sequence data were isolated and the sequence features. ये सब चीजें अगर आपको पता है, and you can go to the start submitting. Okay, you can log in with a Google account. ठीक है, अगर कोई प्रीवियस सबमिशन आपका इनकम्प्लीट है तो वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट, या मेरा कोई प्रीवियस सबमिशन नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट द बैंकेट सबमिशन स्टार्ट किया तो आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डालना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, एड्रेस, सिटी, ये सारी चीजें आप फिलअप करोगे, देन यू हैव टू कंटिन्यू। ठीक है, फिर रेफरेंसेस आ गया, वो पे आपका यहाँ पे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट में आपका सबमिशन है। ठीक है, रेफरेंस आप यहाँ पे डालोगे, सीक्वेंस और डालना है रिचा बाफना। ठीक है, यू कैन ऐड ऑथर्स इफ
मोर देन वन ऑथर इज देयर, यू कैन क्लिक हियर। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका देखो यहाँ पे एक एक आपको स्पेस मिलता जाएगा ऐड करने के लिए परमिशन। ठीक है, यू हैव टू गिव द पब्लिक, ठीक है, विच विल सपोर्टिंग योर सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो है तो अगर अनपब्लिश्ड है तो यू हैव टू क्लिक ऑन अनपब्लिश्ड। अगर इन प्रेस है, इन प्रेस यानी कि आपने पेपर, आपका पेपर जो है वो एक्सेप्ट हो गया है लेकिन अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो इन प्रेस में आपको जर्नल का नाम, और अगर आपका पब्लिश्ड है तो आपके पास पबमेड आईडी भी होगी, तो यू हैव टू गिव अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर अपन ने अनपब्लिश्ड रख, फिर सीक्वेंस ऑथर सेम एज दैट ऑफ रेफरेंस ऑथर, सेम एज दैट सीक्वेंस ऑथर और रेफरेंस ऑथर अगर सेम है तो यू कैन क्लिक हियर। स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे टिक करोगे तो यहाँ पे देखो स्पेस बन गया वेयर यू कैन ऐड द नेम ऑफ न्यू ऑथर। ओके, फिर उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। देखो सीक्वेंस टेक्नोलॉजी अब हमको बताना है। ठीक है, व्हाट मेथड वेर यूज्ड टू ऑब्टेन दिस सीक्वेंस। सेंगर मेथड मैंने कर दिया, अगर कोई और मेथड है तो वो, अगर अदर, अगर कुछ आपने दूसरा मेथड यूज किया तो यहाँ पे आप उसका नाम ऐड कर सकते हो। आप सीक्वेंस असेंबल्ड और अनअसेंबल्ड और असेंबल्ड। ठीक है, अनअसेंबल्ड यानी कि पार्शियल सीक्वेंसिंग है, असेंबल्ड यानी कि कंप्लीट सीक्वेंसिंग है। फिर कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट अपना स्टेप क्या आ गया, न्यूक्लियोटाइड। अब अभी हमको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताना है। फिर सबमिशन रिलीज डेट, when may we release your sequence record immediately after processing। जैसा ही बैंकेट का जीन बैंक का प्रोसेस कंप्लीट होगा वो पब्लिश कर दे, और यू कैन गिव योर कस्टमाइज डेट। अगर आपको कॉन्फिडेंशियल रखने अपना डेटा तो आप यहाँ पर अपना डेट भी डाल सकते हो, बट इट मस्ट बी आफ्टर 6 months फ्रॉम टूडे एंड बिफोर 10 years फ्रॉम टूडे। इस डेट के बीच का रहना चाहिए। देन यू हैव टू गिव द मॉलिक्यूलर टाइप, है ना, जीनोमिक डीएनए है, एमआरएनए है, सीडीएनए है, क्या है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन यू हैव टू गिव द टोपोलॉजी। ठीक है, आर यू सबमिटिंग द कंप्लीट सीक्वेंस, अगर कंप्लीट सीक्वेंस कर रहे तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। देन यू हैव टू, हियर यू हैव टू गिव द सीक्वेंस फॉर्मेट। यहाँ पे देखो उसने एग्जाम्पल भी बताया फास्टर सीक्वेंस का कैसा है ना, यू ग्रेटर देन सीक्वेंस वन, ऑर्गेनिज्म का नाम एंड देन डेफिनेशन। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन गो टू द फास्टा हेल्प। फास्टा हेल्प में आप जाओगे तो देखो ये यहाँ पे पूरा बता रहा है ना, ग्रेटर देन सीक्वेंस वन, फिर स्पेस, फिर ऑर्गेनिज्म का नाम, फिर स्पेस, फिर क्लोन, फिर स्पेस, फिर आपको डेफिनेशन जो भी डालना है, फिर फास्टा का सीक्वेंस डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैसे ही लिखोगे, है ना, आपका जो भी सीक्वेंस है उसको आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे। ऑर्गेनिज्म इक्वल टू एस और एरस प्लस ये मैंने इसका डेफिनेशन डाल दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको ऑर्गेनिज्म को हमको स्मॉल ओ लिखना है, और यहाँ पे भी हमको फिर हमको यहाँ पे सीक्वेंस डालना है, तो सीक्वेंस हम जीन बैंक से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि आप अगर रैंडम कोई सीक्वेंस डालोगे तो जीन बैंक को स्टार्ट और स्टॉप कोड ऑन अगर नहीं मिलेगा तो फिर बैंकेट जो है वो सबमिशन नहीं लेगा, एरर दिखाएगा। इसलिए हम एक रैंडमली एक कोई सीक्वेंस यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, हमको फास्टा फॉर्मेट में डालना है तो हम फास्टा का ही सीक्वेंस यहाँ से जैसे हम सीक्वेंस उठा लेते हैं कोई सा भी, यहाँ से कॉपी किया। ऐसा आप सीक्वेंस डालोगे, आप एक से ज़्यादा सीक्वेंसेस भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो।
देन यू कैन ऑल्सो अपलोड द फाइल। अगर जैसे आपके पास 10 सीक्वेंसेस है तो आप इसी फॉर्मेट में एक सीक्वेंस की फाइल बना लिया एंड देन यू कैन अपलोड फ्रॉम हियर। ओके, देन कंटिन्यू। सी यहाँ पे नोट क्या है, यू हैव चूजन टू सबमिट अ सिंगल सीक्वेंस, बैंकेट अलाउ यू टू सबमिट मल्टीपल सीक्वेंस एंड ऐड मॉडिफायर एंड फीचर एनोटेशन of all of them in one submission. See faster documentation on how to submit more than one sequence. If single sequence is correct, please press continue. है ना, वो यहाँ पे बोल रहा है कि हम एक से ज्यादा भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, लेकिन हमको सिंगल सीक्वेंस ही सबमिट करना है, इसलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज सबमिशन कैटेगरी। हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है, फिर कंटिन्यू। देन यू हैव टू गिव द सोर्स मॉडिफायर। है ना, यहाँ पे हमको लोकेशन बताना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कुछ भी लोकेशन डाल सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया डाल दिया मैंने। फिर सोर्स मॉडिफायर, आप जितने भी इंफॉर्मेशन दे सकते हो अपने सीक्वेंस से रिलेटेड, इफ यू नो, अगर कोई सेल लाइन, सेल टाइप, बायोटाइप, क्लोन, कंट्री, है ना, कंट्री इंडिया जैसे डाल दिया, कलेक्शन डेट, कलेक्टेड बाय, किसने कलेक्ट किया है, क्रोमोसोम का नाम, आपको जो भी मालूम है अपने सीक्वेंस से रिलेटेड, होस्ट, आइडेंटिफाइड बाय, आइसोलेशन सोर्स, है ना, जो भी आपको इंफॉर्मेशन पता है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। जैसे मैंने आइसोलेशन सोर्स डाल दिया, मैनग्रोव सॉइल। अगर आपको और ऐड करना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने सोर्स मॉडिफाई डाला है उसका फिर यहाँ पे टेबल क्रिएट होते जाता है। देन यू कैन प्रेस कंटिन्यू। बोला प्लीज रिव्यू योर सोर्स मॉडिफायर इन द टेबल बिलो। पर देख लो कि हमने करेक्ट डाला है कि नहीं, सब करेक्ट है। देन यू कैन प्रेस कंटिन्यू। ठीक है, देन नेक्स्ट इज फीचर। यू हैव टू गिव फीचर। Provide feature annotation for your submission using one of the option below. Add feature by uploading the 5 column table। अगर आपने कोई टेबल बना के अपलोड भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ऐड फीचर बाय कंप्लीटिंग द इनपुट फॉर्म्स। तो आपको जो जो भी फीचर आपको मालूम है अपने सीक्वेंस से रिलेटेड उसको ऐड करके यू कैन प्रेस कंटिन्यू। अभी क्योंकि मैं यहाँ पे ये मेरा सीक्वेंस नोन नहीं है तो आई कांट गिव एनी फीचर, है ना, तो यहाँ पे देखो लिखा है you have not provided the feature annotation for the submission. Not providing complete and correct feature will delay the assignment of accession number and processing of your sequence. If you have question about adding sequence feature using Bankit, contact the GeneBank user service at this। है ना, अपन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर जाके क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, if you don't provide any feature, confirm whether your sequence can be marked and processed as unverified data। हम यस कर देते हैं, ठीक है, कि हमको आगे प्रोसेस करना है। यस मार्क, यस कर दिया तो देखो आपका लास्ट वाला आ गया है, दैट इज द रिव्यू एंड करेक्ट। देखो यहाँ पर वो जो भी हमने सबमिशन दिया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे पूरी यहाँ पे बन गई है, जिसको हमको रिव्यू करना है। जैसे लोकस नेम डेफिनेशन यहाँ पे अनवेरिफाइड कर दिया क्योंकि हमने फीचर टेबल नहीं डाला। देखो ये आज की डेट आ गई 20 नवंबर 2022। ठीक है, एक्सेशन नंबर, वर्जन, सोर्स, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रियल एस्परजिलस टेरेस डाला, देन एस्परजिलस टेरेस उसका क्लासिफिकेशन आ गया, रेफरेंस बाफना आर, डायरेक्ट सबमिशन, है ना, जो भी हमने अभी इंफॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंगली उसने ये जीन बैंक फॉर्मेट क्रिएट किया है और उसका सीक्वेंस आ गया। ठीक है, अगर ये सब कुछ करेक्ट है तो हम यहाँ पे फिनिश सबमिशन करेंगे। जैसे आप इस फिनिश सबमिशन को क्लिक करोगे ये सीक्वेंस जो है आपका जीन बैंक में जाके सबमिट हो जाएगा फॉर द फर्दर स्टेप, फिर आगे वो प्रोसेस होगा। तो मैं यहाँ पे फिनिश सबमिशन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये अपना रैंडम सीक्वेंस है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज द बैंकेट। ओके, थैंक यू।